Today marks the second day of our 4-day lecture series of Swatantra Veer Savarkar Smriti Abhinav Vyaspeeth. After the successful commemoration of the first day, that is yesterday, we had discussions right from mythology, philosophy, and of course, law. Because the theme for today and for the 4-day lecture series is Indianization of law. We all know Savarkar as a freedom fighter, as a revolutionary, as a fascinating and a prolific writer. But we often forget that he was someone like all of us, a lawyer, a man of letters. His words, his speech has dominated the spirit and the youth since the struggle for freedom. Ladies and gentlemen, our esteemed guest today has certainly commemorated his journey in search for his Veer Ras and has taken up a unique study which will make all of us think, ponder, and establish a link which will resonate with the times to come because it deals with one of the most important documents that not only lawyers have to deal with, the Constitution. Constitution is a subject which acts like a catalyzer for all the students of law. As the Constitution is an all-encompassing document, it itself is a social revolution. Needless to say, our guest and the speaker for today will be elaborating on it. Before that, I would want to welcome our principal, Dr. Priya Chopre ma'am, to deliver the welcome address. So very good morning to one and all present here. Once again, we are gathered here today for the second day of Swatantra Veer Savarkar Smriti Abhinav Bharat Vyaspeeth lecture series. The theme of this year lecture series is Indianization of Law. On behalf of Deccan Education Society's Shri Navalmal Firodia Law College, I welcome you all to this August gathering. Yesterday, we had a grand inauguration of the Swatantra Veer Savarkar Smriti Abhinav Bharat Vyaspeeth lecture series at the auspicious hands of Dr. Radhakrishnan Pillai sir as a chief guest and in the gracious presence of Advocate Rajendra Unap sir as a guest of honor. We, being a law college, always remain cautious about the societal changes and the legal reforms that would be necessary for as per the contemporary needs of the society. Also, we consider it as our solemn responsibility to reach out the masses and to spread awareness among them so as to create informed opinions of the members of society. And it is a precondition for any democratic society which is governed by written constitution like India. Organization of 4 days lecture series in the name of Alumnus of Deccan Education Society is one of such initiatives which is conducted by our college. As we all know, in his times, Swatantra Veer Savarkar was a great leader and he has contributed a lot in building national spirit necessary for the freedom struggle. On this occasion, it's my pleasure to welcome guest speaker for today's session, Assistant Professor Vikramaditya Rathod sir. I am sure the intellectual discourse that sir will have today with us is definitely going to ignite our minds on the important areas of constitution and jurisprudence in the sense of Indianization of law. A very warm welcome to you, sir. I am grateful to Advocate Ashok Palande sir, Chairman of College Development Committee, DS SNFLC, for his constant support and inspiration. I welcome all the teaching staff and all my dear students who are present here in a lot number and eagerly waiting for the intellectual feast that we all will be having today. So, without any further delay, I conclude myself here. I welcome everyone once again. Thank you. Thank you so much, ma'am. That was truly an ebullient welcome address for all of us. Now I would want to call upon Tanmay Dhakras to kindly introduce us with today's guest speaker. Respected dignitaries on and off the dais, with the commencement
of the second day of the Savarkar Smriti Abhinav Bharat Vyaspeeth, it has given us yet another opportunity to interact with a young yet dynamic and erudite speaker, Assistant Professor Vikramaditya Rathore sir. Sir is all a law student should be, which is actually everything. Sir is a teacher, a mentor, an orator, a researcher, a speaker, a storyteller, and he doesn't mention it much, but he is also a poet. Sir is presently pursuing his PhD from Savitribai Phule Pune University in interstate water dispute in India and its impact on federalism. Sir has completed his BSc from Ramjas College, Delhi, and then pursued his LLB from Department of Law, DU. Sir then completed his LLM in Constitutional Law and has cleared NET with a JRF. He is presently working as Assistant Professor of Law in Savitribai Phule Pune University. Being a Dilliwala, Sir's command on Hindi is unparalleled. Sir has had the exemplary honor of representing Bharat at the world stage as a speaker at the BRICS New Generation Youth Leadership Program organized by the Russian government. This program was a part of the third BRICS and SCO Student Spring Festival. For this prestigious program, only 4 candidates were selected from all over the country, and Sir was one of them. In this program, Professor Rathod addressed the audience on Indian culture and Indian diplomacy with the topic Contribution of India and its Vedic scriptures for a peaceful world. Sir has worked as a resource person and guest lecturer for various institutions like the Ramanujan College, Delhi, the Banwarilal College of West Bengal, SPPU Symbiosis Law College, the D.Y. Patil Institute, University of Baroda, etc. Sir, like every one of us, is also a passionate orator. Sir has participated in various competitions during his college years and was awarded Certificate of Excellence by the prestigious Bharatiya Chhatra Sansad of MIT YPU 2016. Sir's video clip of the speech given at the Chhatra Sansad is available on YouTube and is a masterclass in oratory in itself. Now I call upon our principal, Dr. Priya Chopre ma'am, to felicitate Professor Rathod sir. Thank you so much, Tanvay. Article 1 of our Constitution clearly mentions India, that is Bharat, where first the Constitution will assert a nation-state identity along with having the responsibility for fulfilling its commitment towards the civilization. Our guest hereby will definitely help gather a broader perspective to the Bharatiyata in the Indian Constitution, which for today's time is necessary to be instilled in the minds of every Indian. There's a chit that will be passing for the question answer and the student interaction round. So we'll be starting from behind, and after the end of Sir's address and speech, all of you can write down your questions. We'll be collecting it in a box and Sir will be answering those questions. So between the program, you'll be getting 2 of our volunteers who will be circulating the chit like we did yesterday. So without wasting a further moment, I would now like to call upon Sir to kindly start with the lecture for today. First of all, thank you very much, ma'am. And I must be very thankful to the most prestigious college and the campus in the Pune. This is the place where Swatantra Veer Savarkar has spent the most precious 4 years. So this is a really honorable place for me as well and for all of us.
As Tanmay has mentioned while reading my CV, he has mentioned that I have some sense of poetry. So, as you all aware about one of the Urdu poet, Professor Muhammad Iqbal, once he has said, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से, मगर अब तक बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जब इकबाल साहब ने ये बात तकरीबन 82 ईयर पहले कही थी, जब उन्होंने ये बात कही तब शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स और हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी थी, उन्होंने शायद वहां से इंस्पिरेशन ली कि ऐसा क्या है हिंदुस्तान में कि इसकी हस्ती मिटती नहीं। जब इस पर्टिकुलर सेशन की थीम रखी गई इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ, तो मेरे जहन में भी यह सवाल आया कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ। ये जो इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ, रिसेंटली आवर एक्स सीजेआई रमन्ना सर हैज said in one of the event that we need a इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ। सब लोग बोल रहे हैं कि इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस इंस्टीट्यूट का जिसने आज ये करके दिखाया कि ये कैसे होना चाहिए। दे हैव, आप पिछले 3-4 महीने के, 1 साल की न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, एक ट्रेंड बन चुका है। देयर आर मैनी jurists, देयर आर मैनी lawyers, देयर आर मैनी academicians who are continuously speaking that we need इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? भगत सिंह होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में। सिमिलरली इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ होना चाहिए लेकिन शुरू कौन करे? बड़ा कदम है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं फर्ग्यूसन लॉ कॉलेज का, जिन्होंने इस कदम को उठाया। The theme is Indianization of law and I have choose the sub theme that probing भारतीयता in Indian Constitution and jurisprudence। अभी इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ कैसे होना चाहिए? 2 सवाल है यहां पर। The first one is why we need Indianization of law, and the second is how we achieve, how we execute the proposal of Indianization of law. There are 2 questions, and now the whole session will include the answering of these 2 questions, that why we need Indianization of law। पहले इस पे बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ। इतना अच्छा तो लॉ है हमारे पास, फिर इंडियनाइजेशन की क्या जरूरत आन पड़ी? बस डॉक्टर अंबेडकर स्टूड अप, वो खड़े हुए और उन्होंने ये बोला कि आई वांट टू क्लियर द फैक्ट दैट वी डिडंट टेक द एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। दिस इज द इंडियन कॉन्सेप्ट प्योरली। उन्होंने एग्जाम्पल दिया महापरिनिर्वाण। देयर इज एन बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसमें बुद्ध के आखिरी के सालों के बारे में बात की गई है। उसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि बुद्ध वाज डाइंग इन कुशीनगर। बुद्ध लगभग डेथ बेड पे थे कुशीनगर में, और उनके सारे डिसिपल्स कुशीनगर से काफी एक दूर जगह पे एक पार्लियामेंट्री सेशन कर रहे थे। दैट वाज रिटन इन देयर, लोकतांत्रिक सत्र, पार्लियामेंट्री सेशन वाज कंटिन्यूइंग। तो ये मैसेज भेजा गया उनके डिसिपल्स को कि वहां पर बुद्ध डेथ बेड पे है, आप लोग आइए। लेकिन उस पार्लियामेंट्री सेशंस के जो हेड थे उन्होंने बोला था, नाउ वी आर वर्किंग ओवर द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट्री सेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस rather than one person. They refused it. Later on,
Dr. Ambedkar has said, this was the first example. Later on, Dr. Ambedkar has also said कि जो बुद्ध विहार होते हैं, उन बौद्ध विहारों में जो the head of that particular बौद्ध विहार का जो इलेक्शन होता है, that election was based on the secret ballot. सीक्रेट बैलेट होता है ना, जो हमारा सिस्टम है जो इलेक्शन का, हुई सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग पैटर्न था. दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट. द सेकंड वन इज, आप लोगों ने बेंथम का नाम सुना होगा, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल. बेंथम साहब ने एक एजुकेशन में भी काम किया है. उन्होंने एजुकेशन में एक सिस्टम दिया जिसको आज हम लोग बोलते हैं मॉन्टेंसरी एजुकेशन सिस्टम, जहां पर एक इंस्टीट्यूट होता है और उस इंस्टीट्यूट में टीचर्स के अलावा क्लास रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मॉनिटर्स होंगे जो पूरी क्लास को हैंडल करेंगे. अगर आपके पास प्रॉपर नंबर में टीचर्स नहीं है तो इसलिए वहां पर आप स्टूडेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, सो दैट योर इंस्टीट्यूट कैन फंक्शन इन एन बेटर वे. मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल, बिना खर्चे के, टीचर की जरूरत भी नहीं. Bentham has given this method, and Bentham has took this inspiration from the Andrew Bell. He was a bishop. पुरानी स्टोरी है, 18th सेंचुरी की. He was a bishop, Andrew Bell. Andrew Bell ने एक्चुअली ये मॉडल दिया था, और जिस उस मॉडल को एक्सेप्ट किया किसने? Bentham ने, and then he executed this model through the UK education system, through the UK government. अब एंड्रू बेल ने ये सिस्टम कहां से लिया? एंड्रू बेल की जो बॉडी जहां दफनाई गई है उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. उस इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा हुआ है कि ही इज द एंड्रू बेल हु हैज गिवन द बेल methodology for education, which was taken by the Graham Bell, and it was also written over there that Bell system is also known as the Madras methodology. Madras methodology. ये मैं थोड़ा सा राइट टू एजुकेशन पे आ रहा हूं, जो आज यूके में वगैरह सब जगह बोला जाता है ना कि सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए. सो दिस इज एन मद्रास मेथोडोलॉजी. अब मद्रास मेथोडोलॉजी कैसे? एक्चुअली पुराने समय में ब्रिटिश सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम इन यूके एजुकेशन सिस्टम टोटली फेल था. दे डिडंट हैव अ प्रॉपर टीचर्स. कैसे किया जाए? एंड्रू बेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि कुछ ढूंढो. एंड्रू बेल केम टू द इंडिया एंड ही विजिटेड द मद्रास गुरुकुल पाठशाला, जहां पर एक आचार्य सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स को जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स को रेगुलराइज करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको कंफर्टेबल करने के लिए एक अपॉइंटमेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. आप किसी गुरुकुल सिस्टम में चले जाइए, गुरुकुल में आपको एक ही टीचर मिलेगा. एक कल शिक्षा, एकल टीचर, ताकि एक टीचर है, एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है, और छोटे क्लास के स्टूडेंट अपने बड़े क्लास के स्टूडेंट के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो उन बच्चों को पढ़ाएंगे. एवरीवन इज हैप्पी. मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल. आज जो मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम है, इसका इंस्पिरेशन, जो मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम ये बोलता है, वी आर गिविंग अ राइट टू एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एंड राइट टू एजुकेशन इज ओरिजिन ऑफ आवर्स. मॉन्टेसरी एजुकेशन इंग्लैंड का सिस्टम वो ये बोलता है. लेकिन जब मैं इसकी तह में जाता हूं तो मुझे पता चलता है ये तो मद्रास की पाठशालाओं में भी हो रहा था. द थर्ड वन इज रूल ऑफ लॉ की हम लोग बात करते हैं. एवी डाइसी. जब भी रूल ऑफ लॉ की बात आती है, एवी डाइसी ने बोला देयर शुड नॉट बी रूल ऑफ मैन, देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ. अब वही एवी डाइसी जब ये कोट करते हैं, तो इस कोटेशन के पीछे जब मैंने इसकी हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश की, मुझे पता चला कि जो एंशिएंट वैदिक सिस्टम जो था, उसमें जब एक राजा का जब राज्याभिषेक होता था, तो राज्याभिषेक के दौरान राजा को एक छड़ी दी जाती थी और उससे बोला जाता था कि इस छड़ी का यूज कीजिए और इससे पूरी सिस्टम को गवर्न करना, और अगर कोई वायलेंस करता, अगर कोई ऑफेंस करता, तो इस छड़ी से यू कैन गिव देम पनिशमेंट. इसके बाद यहां तक क्या लगता है कि इट वॉज एन रूल ऑफ मैन. बट इस सिस्टम के बाद जैसे ही वो उस पुरोहित का पैर छूने की कोशिश करता है राजा,
तब पुरोहित उसके सिर पे एक और छड़ी मारता है और बोलता है धर्म दंडो अस्ति, यानी तुम्हारे ऊपर धर्म का दंड है, एंड इवन यू आर subjected to the dharma, and dharma doesn't mean religion, it does mean the rule of law. So even that king was subject to the rule of law. The rule of law was also there in the past of ours. Dharma क्या है? Dharma is not a religion. If you gone through with the Vedic literature, वहां पे ये बताया गया है that rule of law or the dharma is a rule of life. धृति समा सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण. These 10 are the धर्म के लक्षण. डे टू डे लाइफ में जो आपको यूज करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको अपने कंट्रोल करना है सेंसेस को. These all are the characteristics of the dharma. इसकी बात की गई है. ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, जब मैं इन एग्जाम्पल्स को देखता हूं तब मुझे ये महसूस होता है कि जरूरत है इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ की. और फिर उसके साथ एक सवाल उठता है. यहां पर कई सारे लॉ टीचर्स भी होंगे, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स है. व्हेन वी गो थ्रू विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आप जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली या दूसरी क्लास में बैठते हैं तो पहली चीज आपको बताई जाती है दैट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बोरोइंग. पढ़ते हैं ना हम लोग? एम आई रॉन्ग? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बोरोइंग. मैनी ग्रेट थिंकर्स, मैनी ग्रेट academicians हैव फ्रीक्वेंटली गिव द स्टेटमेंट कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोइंग्स है, उधार है. इज इट ए राइट स्टेटमेंट? यस, यस प्लीज. कौन है यस वाले? बताइए मुझे. घबराने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली इट इज नॉट. दिस इज द प्रॉब्लम विद द लीगल एजुकेशन सिस्टम दैट वी एक्सेप्ट. जो बड़े बड़े लोगों ने एक बार बोल दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन सेट ऑफ बोरोइंग. हमें अक्सर ये बताया जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, वी हैव टुक द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द यूएसए. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में. आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट. क्लियरली लिखा हुआ बहुत सारी बुक्स में. फंडामेंटल राइट्स कहां से उधार लिए? यूएसए से. 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. 1776 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना. और 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के व्हेन वी आर गिविंग द राइट टू इक्वलिटी एंड वी वर प्रैक्टिसिंग राइट टू इक्वलिटी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएसए वाज फेसिंग द रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस. 1960 में जाके ब्लैक्स को वहां पे इक्वलिटी का राइट मिला है. दैट इज द स्टोरी ऑफ द यूएसए. 1960 में मार्टिन लूथर किंग ने एक सिविल मूवमेंट स्टार्ट किया. उसके बाद जाके वहां की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को इक्वलिटी का राइट मिल रहा है 1960 में. और 1950 में वी वर गिविंग द इक्वलिटी राइट्स. तो ये कैसे बोलना ठीक रहता है कि वी हैव टुक द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स और स्पेशली राइट टू इक्वलिटी फ्रॉम द यूएसए. एक और मैं एग्जांपल बताता हूं आपको. यूके के बारे में बोला जाए, जब भी जैसा कि अभी अंबेडकर साहब ने बोला, नो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट द आइडिया ऑफ यूके ओनली, इट इज एन एंशिएंट आइडिया ऑफ भारत. आप कभी आपको टाइम मिले तो यूके की जो पार्लियामेंट है, जिसके बारे में ये भी बोला जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट इक्वलिटी फॉलो करने वाला कंट्री है. वहां से हमने इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लिया, वहां से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया, वहां से हमने सेकुलरिज्म लिया. मैं आपको बता दूं, यूके की जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसमें 15 सीट रिजर्व रहती है फॉर द चर्च. द 15 सीट्स आर ऑलवेज रिजर्व फॉर द चर्च रिप्रेजेंटेटिव. अब मुझे बताइए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव के लिए सीट अगर रिजर्व है, हाउ कैन इट बिकम एन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट? हाउ कैन इट बिकम अ सेकुलर इंस्टीट्यूट? क्या हिंदुस्तान ने वहां से लिया होगा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो आइडिया लिया होगा क्या वहां से? नो.
डीपीएसपी के बारे में बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच इज देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके बारे में बोला जाता है कि वो सोशल वेलफेयर का आइडिया है, सब लोगों को इक्वली सारे रिलीजन, सारे कास्ट को इक्वली ट्रीट करेगा स्टेट, और सबको प्रॉपर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दैट इज द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हमें पढ़ाया जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आइडिया हमने आयरलैंड से लिया। आयरलैंड का प्रियम्बल पढ़िएगा, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। They have specifically mentioned that we respect that this country will give the preference. Even in the Article 44 of the Ireland Constitution, it is written that we will give preference to the Catholic religious people. It is written over there. Directive principle of state policy का idea हमने Ireland से लिया, and directive principle of state policy means same that resources should be distributed to everyone irrespective of the religion and caste, but this preamble of the Ireland give preference to the one particular religion. I'm not against any religion, I'm just telling you the fact. और आयरलैंड वालों ने ये कहां से लिया? They have took this idea from the Spanish Constitution, and Spanish Constitution is based typically and clearly and absolutely based on the papal blue. What is it, this papal blue? This is the command and order of the head of the Vatican Church. आयरलैंड लेता है स्पेन से, स्पेन लेता है एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, और वहां से हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमने डीपीएसपी का आइडिया लिया। आप कैसे बोल सकते हो? हमको 10 बार सोचना चाहिए हमारे एकेडमिशियंस को ये बोलते समय। अगर आप ये बोलते हो कि ये सारे आइडिया हमने इन कंट्री से लिया, इट डज मीन आप ये कहना चाहते हो कि हमारे आवर कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स आर प्री ऑक्यूपाइड विद द आइडिया ऑफ द रिलीजियस थिंग्स, विद द आइडिया ऑफ द कास्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स के सामने जो चीजें थी, उनको ये पता था कि हमको रिलीजियस चीजें साइड में रखनी है, हमको कास्ट बैरियर साइड में रखना है, हमको एक इक्वल सोसाइटी चाहिए। ये वो लोग थे दिल्ली में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, दैट वाज द मोस्ट, ग्रैनविल ऑस्टिन हैज सेड कि दैट पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट। क्यों है रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट? सोचिए आप, 1950 में हमारा 1940 on 10th of December 1946 we have started with the Indian Constitution. सेंट्रल हॉल, जो कि आज पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, उसी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के डिबेट कर रही थी, और उससे 5 किलोमीटर बाहर दंगे चल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को अपनी जान भी बचानी होती थी, उनको सोचना भी होता था। इन सारी एडवर्स कंडीशंस में दे हैव रिटन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। और हम जब ये बोलते हैं कि इंडिया इज ए सेट ऑफ बोरोइंग्स, तो हमें सोचना पड़ेगा कि सच में ये सेट ऑफ बोरोइंग्स था क्या? आप these all examples actually clarify this fact that why should we need to think about Indianization of law? जब ये सारा लॉ इंडियनाइजेशन वे में लिखा गया है, तो उसको बताना भी जरूरी है। अभी इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ, ठीक है, चलो मैंने एग्जांपल बता दिए कि क्यों इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ जरूरी है, क्योंकि each and every provision of this constitution is actually inspired from the India, the word India or the word भारत। पर हमारे सिस्टम में ये बताया जाता है कि ये वहां से उधार लिया, ये वहां से उधार लिया, ये वहां से उधार लिया है। तो पहले आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए, आग उठनी चाहिए कि यस, क्यों इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ जरूरी है। ये सारे एग्जाम्पल, इनके बारे में आप सोचना, और ऐसे और हजारों एग्जाम्पल है, उनके बारे में आप सोचना। अब अगला सवाल ये है, which is the most tough task before us, कि इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ करना कैसे। ये तो हो गया कि हाँ ठीक है यार, लग तो रहा है कि ये जो हमारे सामने जो लॉ है वो इंडिया से इंस्पायर है, इट हैज अ ओरिजिन इन इंडिया, बट ये करना कैसे? करने के लिए हमको हमारे पास्ट में जाना होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन बोरोइंग ऑफ सेट फ्रॉम द
वेस्ट, तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन कहां से है? द इंडियन एब्सोल्युटली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम इट्स पास्ट ओनली, इट्स कल्चर ओनली। हमारा जो पास्ट है, जो कल्चर है, वहां से ही आता है। क्या था हमारा कल्चर? ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक बुक लिखी है, आप सब लोगों को पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा। इन दैट पर्टिकुलर बुक ही हैज रिटन द कैरेक्टरिस्टिक्स और द यूनिकनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ग्रैनविल ऑस्टिन ये लिखते हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे डिसीजन कंसेंसस के बेस पे लिए। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ओनली, इट वाज बेस्ड ऑन द कंसेंसस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। कंसेंसस का मतलब ऑलमोस्ट 99% सारे लोग एक ही चीज पे सहमत हो जाना, और मेजोरिटी मींस 100 में से 51 अगर सहमत हो जाते तो इट्स मेजोरिटी। But the Indian Constituent Assembly has opted the consensus method on many of the issues and the fact. बहुत सारे जो हमारे फैक्ट, जो हमारे प्रोविजंस है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेंसस। नो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये मेथोडोलॉजी कभी यूज नहीं की। सबके डिसीजंस आए हैं, सबके प्रोविजंस बने मेजोरिटी बेस पे। 100 में से 51 ने बोला कि पास कर दो, पास कर दिया। बट हमने कंसेंसस मेथोडोलॉजी फॉलो की है। अब ये कंसेंसस मेथड, इफ यू सी द आर्टिकल 368 क्लॉज 2 प्रोविजो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बताता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर अमेंडमेंट करने हैं तो सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज नहीं, यू नीड द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स एज वेल। स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए। इट शोज द कंसेंसस। हालांकि हमारी पार्लियामेंट में मेजोरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है, लोकसभा एंड राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है, बट उसके बावजूद भी कहा गया है कि अगर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो यू नीड द कंसेंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ द स्टेट्स। ये कहां से आया ये फैक्टर? ये हमारे पास्ट में था। द इंडियन पास्ट ऑलवेज सेज, बेंथम बोलते मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल, बट इंडिया, भारत सेज सर्वे भवन्तु सुखिनः। Survey, there is a difference between maximum and survey. Survey means 100% consensus, and the maximum means majority. You can find this concept of survey in a preamble as well. Preamble में आप लोगों ने देखा होगा, एक 3 वर्ड है, we the people, parliamentary, yes, we the people, parliamentary form of government, and republic. अब जो लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर हमने रिपब्लिक वर्ड क्यों ऐड किया हमारे प्रेम्बल में? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हो सकता है कि वी द पीपल एक ऐसी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को चूज करे जो आगे जाके सिर्फ मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए लॉ बनाए। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमें जो माइनॉरिटी छूट गई है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो एक ऐसा लॉ जो सिर्फ मेजोरिटी के लिए आ रहा है, वी द पीपल ने एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को बनाया, दैट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को बनाया, और हो सकता है कि वो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट एक ऐसे डिसीजंस ले जो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के लिए हो। इट इज पॉसिबल। माइनॉरिटी का क्या होगा? उस लॉ को कैसे रोका जाए? उस लॉ पे चेक एंड बैलेंस कैसे हो? आप सब लोगों को पता है हमारे पार्लियामेंट कितना भी अच्छा लॉ पास करे, लेकिन उसके बाद एक न एक बार प्रेसिडेंट के पास ले जाना जरूरी है, ताकि वो ये देखे कि इसमें कहीं माइनॉरिटी या कहीं कोई और सेक्शन उसके लिए कुछ बुरा तो नहीं। दैट्स व्हाई वी ऐड द रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल। वी हैव वर्ड रिपब्लिक एज वेल। रिपब्लिक इसीलिए है कि आपका वी द पीपल कभी कभी गड़बड़ भी कर सकता है और एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट लाके प्रॉब्लम भी हो सकती है। उस मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का लॉ माइनॉरिटी के लिए नुकसानदायक ना हो, इसीलिए रिपब्लिक इज देयर हु विल चेक दैट पर्टिकुलर लॉ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इट्स नॉट अ मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल। मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल के लिए वी द पीपल एंड
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनफ था, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूके में नहीं है रिपब्लिक, वहां जो पार्लियामेंट बोलती दैट इज फाइन. इसीलिए बोला जाता द यूके पार्लियामेंट कैन थ्रू द लॉ कैन चेंज द मेल इनटू द फीमेल. है उनके बारे में, दे कैन चेंज इट थ्रू द लॉ ओनली. ठीक है, सो हमारे यहाँ ऐसा ना हो सकता है, पहले भी कुछ सालों पहले ऐसा कोशिश की गई थी, बट रिपब्लिक इज देयर टू कंट्रोल दिस थिंग. दिस इज द आइडिया ऑफ कंसेंसस. मुझे बताइए वर्ल्ड के किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये आइडिया हो तो, आइडिया ऑफ कंसेंसस. बहुत सारे डिसीजन सर्वे भवंतु सुखी की आइडियोलॉजी के बेस पे लिया जाता है. So India has introduced the idea of republic. India has introduced the idea of consensus in our constitutions through our past, not from the idea of the West. एक और चीज है, जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे प्रीवियस एंकर ऊर्जा ने बोला, आर्टिकल 1 which says that India that is a भारत. अब उसमें एक वर्ड आ रहा है भारत. What is the meaning of भारत? किस लिए वर्ड भारत डाला गया? And what is the meaning of भारत? Can anyone please tell me? Yes, please. नहीं, I can understand, but what is the meaning of भारत? That is what I am asking. भारत किस लिए? Yes. आप में से कोई और बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड. यस प्लीज. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. व्हाट्स योर नेम? सत्यजीत. थैंक यू. सो इफ यू सी दैट आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया दैट इज अ भारत, तो उसका कोई मीनिंग, एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड. तो अगर किसी स्टेज पे आप भारत बोल रहे हो तो घबराइएगा मत. इट इज अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड. और इस वर्ड भारत को डालने के पीछे की बहुत बड़ी फिलॉसफी है. एज सत्यजीत हैज सेड, द मीनिंग ऑफ भा मीन्स प्रकाश, द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, एंड द रथ मीन्स इनग्रॉस. यानी एक ऐसी जगह जहां के लोग लगातार अल्टीमेट ट्रूथ की खोज में लगे रहते हैं. इंडियंस यानी भारतीय आर सीकर्स, दे आर नॉट बिलीवर्स. हमें कोई भी चीज आप बोल, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आपके एक दोस्त का जो बहुत अच्छा दोस्त है, आपका रूममेट है, उसके अगर बहुत अच्छे नंबर आ गए, वो पिछले 5 साल से आपके साथ है, उसके बहुत अच्छे नंबर आए, तो भी आपको विश्वास नहीं होगा. ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? बिकॉज वी हैव ए सीकिंग नेचर. ये सीकिंग नेचर आती है आपके देश के नाम से, भा प्लस रथ, यानी लोग जो जहां लगातार सीकिंग में लगे रहते हैं. हमने सीकिंग करते करते एक पूरा उपनिषद बना दिया, दैट इज अ प्रश्न उपनिषद, सवाल पूछ के. अब ये कहां रिफ्लेक्ट होती है सीकिंग नेचर? हमारी सीकिंग नेचर थी क्योंकि हमारे देश का नाम भारत है. हम किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, वी आर सीकर्स, अल्टीमेट ट्रूथ की खोज में लगे रहते हैं. इसलिए जब हिंदुइज्म आता है तो हिंदुइज्म के बाद हिंदुइज्म में ही रहने वाले लोग बोलते हैं कि यार मजा नहीं आ रहा, कुछ नई चीज की तलाश की जाए. दे कम आउट विद द बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें भी कुछ नई चीज खोजनी है हमें, वी आर अ सीकर्स. दे कम आउट विद द जैनिज्म. इस्लाम का इन्वेजन हुआ. इस्लाम हैज ट्राइड देयर बेस्ट टू कन्वर्ट द इंडियंस इनटू देयर रिलीजन, इनटू द रिलीजन ऑफ द इस्लाम. लेकिन हमने वहां पे भी क्वेश्चन मार्क किया, एंड वी हैव कम आउट विद द, हमने इस्लाम को सूफीज्म दे दिया. That is just because of the seeking nature of the Indians. That's why it is important. That's why Hinduism भी है, Buddhism भी है, Jainism भी है, Sufism भी है. We have a composite culture. That's why fundamental duty, if you see 51 capital A small h clearly says that it is the duty of every Indian to preserve the composite culture of this country. It is not only culture. 51A small h fundamental duty clearly लिखा हुआ है that we have a composite culture. composite culture कैसे बनता है? सीकिंग नेचर से बनता है.
If you are a believer, then you have only culture. You are a seeker, that's why you have a composite culture. Constitution का justification भारत से आ रहा है. 51AH. Again 51AF पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है we have to preserve the scientific temperament and inquiry nature. हर भारतीय को साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाए रखना और इंक्वायरी नेचर भी बनाए रखनी है. कैसे? क्योंकि हमारे देश का नाम है भारत. भारतीय आर सीकर्स. क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं वो लोग. आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. वहां पे उन्होंने एक चीज मेंशन की है. व्हेन चार्ल्स डार्विन हैज रिटन दैट बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ, फर्स्ट टाइम चार्ल्स डार्विन ने ये एस्टेब्लिश किया कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लाइफ, इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गॉड और समथिंग सुपरनेचुरल थिंग्स. इट इज एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द माइक्रोब्स. साइंटिफिक आर्गुमेंट दिया एंड दैट बुक वाज पब्लिश. और ये बुक, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि यूरोप वाज the progenitor of science and scientific temperament, that book was banned for some time in the Europe itself. यूरोप में ये किताब कुछ सालों तक बैन रही क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि इंसान की उत्पत्ति भगवान ने नहीं, माइक्रोब्स और साइंस से हुई है. तो वहां पे चर्चेज ने एक ऑर्डर रिलीज किया और बोला इस बुक को कुछ सालों तक बंद रखो. बाद में उस बुक में मॉडिफिकेशन करना पड़ा, डार्विन को लिखना पड़ा कि नहीं ये भी एक थ्योरी है, साथ में भगवान ने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया है. तब जाके वो बुक यूरोप में उस पे बैन हटा. लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दैट बुक वाज, व्हेन दैट पर्टिकुलर बुक केम इनटू द इंडिया में ये बुक आराम से पढ़ी गई, कोई बैन नहीं हुआ और लोगों ने बहुत ही कंफर्टेबली इसको एक्सेप्ट किया. क्योंकि वी नो, हमें पता था कि जो इंसान की उत्पत्ति हुई एक इवोल्यूशन से हुई है. आप में से कभी मौका मिले विष्णु पुराण पढ़िएगा. विष्णु पुराण में 10 अवतारों की बात की गई है. पहला अवतार है मत्स्य, दूसरा है आपका सूकर वराह अवतार, फिर टॉर्टॉइज आता है, फिर उसके बाद आपका वामन अवतार आता है. प्लीज कंपेयर इट विद द लाइफ ऑफ इवोल्यूशन. डार्विन यही बोल रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले पानी में होता है, फिर मड में होता है, फिर सैंड पे होता है, फिर द फर्स्ट मैन वॉज अ ड्वार्फ, छोटा था, वामन अवतार. सो दैट वाज नॉट न्यू फॉर इंडिया. इसीलिए चार्ल्स डार्विन की जब बुक हिंदुस्तान में आती है तो हमने बोला ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज वी हैड अ साइंटिफिक इंक्वायरी वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे पास पहले से ऑलरेडी था. दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द फंडामेंटल ड्यूटी इट वाज रिटन, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने बोला है कि आपका पास्ट में आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट था, उसको आज भी जिंदा रखना. आप लोग आज थोड़ा कम मिलता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, पर उसको जिंदा रखना. इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू प्रोटेक्ट द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड द इंक्वायरी नेचर. ये किससे हो रहा है? सब एक ही चीज से, भारत. इसलिए आई हैव टुक दिस वर्ड भारतीयता, प्रोबिंग द भारतीयता इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज रिटन ओवर देयर. और भी कुछ एग्जांपल है. आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, जॉन रॉल्स को पढ़ा है ना? जॉन रॉल्स, मुझे जॉन रॉल्स, मैं अपनी क्लास में जब भी जॉन रॉल्स को पढ़ाता हूं तो आज तक एक चीज मुझे समझ में नहीं आई है. जॉन रॉल्स हैज गिवन द होल थ्योरी. उसमें वो ये बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वली मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि सारे लोग ये फील करें कि दे आर ऑन द सिमिलर पोजीशन. वो भूल जाए कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है. अगर आप ये सारे चीजें भूल जाएंगे तो यू विल फील द इक्वलिटी अमंग अस, और उसके बाद आप लोग डिस्ट्रीब्यूशंस का भी इक्वल रिसोर्सेज कर सकते हो. और इस पोजीशन को वो बोलते हैं हाइपोथेटिकल पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन. सारी थ्योरी दे दी, पूरे वर्ल्ड में थ्योरी पढ़ाई जा रही है, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये ओरिजिनल पोजीशन कैसे आएगी. हाउ कम इट पॉसिबल
कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं कहां से आ रहा हूं, मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरे रिसोर्सेज क्या है, मेरे ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे मैं भूल जाऊं? इज इट पॉसिबल? क्या वर्ल्ड के पास इसका आंसर है? डू वी हैव एनी मैकेनिज्म टू डन अवे विथ आवर डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशंस इन द सोसाइटी? कोई है मेथोडोलॉजी? डू वी हैव एनी मेथोडोलॉजी? प्लीज बताइए मुझे, कैसे मैं भूल जाऊं? यस प्लीज। रैशनलिज्म, नेशनलिज्म, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पोजिशन। वो बोल रहे सब भूल जाइए, आप कुछ भी नहीं, आप भूल ही जाइए, बस एक चीज याद रखने की यू आर ए ह्यूमन बीइंग, बस इतना याद रखना है। यस प्लीज। इज इट पॉसिबल? डू वी, वर्ल्ड की किसी भी फिलॉसफी में इसके लिए कोई मैकेनिज्म है कि मैं ये भूल जाऊं सारी चीजें? यस प्लीज। हु इज देयर? यस यस प्लीज। राइट, ही इज राइट। व्हाट्स योर नेम? थैंक यू अविनाश। अद्वैता, Advaita is the mechanism. It is not only philosophy. It is a working mechanism where you can forget all type of dualism. आप भूल सकते हो ये सारी चीजें. And for that, Indian philosophy has given a 12 type of नियम, 12 रूल बताए गए. नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम. You do this thing. आप अगर प्राणायाम भी ढंग से करते हैं, योग भी ढंग से करते हैं, तो आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच सकते हो जहां पर आपको ये जितनी भी पोजीशंस है, ये सारी पोजीशंस आप भूल सकते हो. एंड यू कैन फील ओनली वन थिंग, कि मैं एक ही हूं. आई एम नॉट एन डुअल. मेरी कोई और आइडेंटिटी नहीं है. आई एम द ओनली सिंगल पर्सन. आई एम ओनली ह्यूमन बीइंग. और अगर आप अद्वैत को फॉलो करते हो तो उसके बाद आप अपने आप रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते रहिए. जॉन रॉल्स ने बस बोल दिया कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने इक्वल, और ये चीज हमें करनी है, लेकिन वो भूल गए कि पोजीशन कैसे लाई जाए. फॉर दैट पोजीशन द भारत हैज गिवन द आइडिया. द साइंटिस्ट ऑफ भारत, दैट इज अ ऋषि, दे हैव गिवन द आइडिया. द आइडिया ऑफ योग, प्राणायाम एंड द अद्वैता, अद्वैत फिलॉसफी, नॉन डुअलिज्म. अब एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. आर्टिकल 25 के बारे में कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज आर्टिकल 25? यस प्लीज. व्हाट इज आर्टिकल 25 ऑफ द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इट सेज? राइट टू रिलीजन. ओके, ठीक है. और कुछ? व्हाट इज द मार्जिनल नोट जो ब्लैक वर्ड्स में लिखा रहता है ना, वो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 25? यस, फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन. ठीक है, चलिए. इट इज रिटन ओवर देयर दैट फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड प्रोफेस, प्रोपोगेट द रिलीजन. इट इज द एक्चुअल मीनिंग. जब आर्टिकल 25 को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, राइट टू रिलीजन या फ्रीडम ऑफ कंसाइज की जगह हम एक वर्ड यूज करेंगे, राइट टू वर्शिप. राइट टू वर्शिप, ये भी एक प्रपोजल आया है. क्यों राइट टू वर्शिप? क्योंकि जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वेस्टर्न आइडियाज है, वहां पे इस रिलीजियस फ्रीडम को जो गारंटीड किया गया है, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज की गई है, दैट इज अ राइट टू वर्शिप. लेकिन हमने ये यूज नहीं किया. क्यों नहीं यूज किया? Why we use the term freedom of concise, not a right to worship? Actually क्या है कि when used, आपको इसके लिए semantic समझना पड़ेगा, worship का meaning समझना पड़ेगा. For the worship you need an institution. For the worshipping you need an institutions. जैसे अगर आप इस्लाम से है तो आपको मॉस्क चाहिए, अगर आप हिंदुइज्म से है तो आपको मंदिर चाहिए, अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको चर्च चाहिए. देन ओनली यू कैन से यस आई हैव अ राइट टू वर्शिप. पर हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ पूजा चर्च या मॉस्क या मंदिर में नहीं होती है. हमारे यहाँ गणेश महोत्सव बाहर भी होता है, हमारे यहाँ ताजिया महोत्सव रोड पे होता है. तो अगर आपने सिर्फ राइट टू वर्शिप की बात की तो प्रॉब्लम यह है कि राइट टू वर्शिप नीड ए इंस्टीट्यूशन, और सिर्फ इंस्टीट्यूशन तक आपका रिलीजन लिमिटेड होकर रह जाएगा. बट हमारे यहाँ तो रिलीजन सब तरफ फैला हुआ है. कुल देवता है, कुल देवी है, पेड़ों को पूजा जाता है, नदी को पूजा जाता है,
हम गणेश महोत्सव मनाते हैं, हम शिवाजी महोत्सव मनाते हैं, तो ऐसे में राइट टू वर्शिप वर्ड यूज करना, इट इज रॉन्ग. कन्हैयालाल मुंशी एंड डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड, यू कांट इमेजिन इंडिया विदाउट रिलीजन. आप इंडिया को रिलीजन के बिना महसूस ही नहीं कर सकते. और रिलीजन इज एवरीवेयर, सब जगह है रिलीजन. अब अगर रिलीजन सब जगह, तो राइट भी ऐसा देना है जो सब जगह एप्लीकेबल हो. तो कैसे कैसे दिया जाए वो राइट? अगर आप चाहते हो कि आप रोड पे अपने भगवान को पूजना चाहते हो तो पूजिए. आप मंदिर में करना चाहते हो तो वहां भी जा सकते हो. आप पेड़ को पूजना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. आपका जो कंसाइज कहता है वो आप कर सकते हो. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड फ्रीडम ऑफ कंसाइज, नॉट अ फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग. That's why the freedom of concise is there, not a freedom of worshipping. Right to worship. Concise इसीलिए यूज किया गया है. और concise ये भी अलाउ करता है आपको. Look at the beauty of this particular word. Concise ये भी अलाउ करता है आपको कि अगर आपको नहीं पूजा करनी है, if you are atheist, even then you can continue with this system. मेरी आत्मा, मेरा जो कंसाइज अगर मुझे ये बोलता है कि ठीक है मुझे नहीं पूजा करना है, या मैं किसी भी फॉर्म में भगवान को पूजा करना चाहता हूं, कर सकते हो आप. और नहीं करना तो भी कर सकते हो. इसीलिए ये आइडिया कहां से आया? इवन द सेम आइडिया केम्स फ्रॉम द आवर पास्ट. हमारे पास्ट में क्या है? कबीर निर्विकार को पूजते हैं, फॉर्मलेस गॉड. मीरा कृष्ण को फॉर्मलेस फॉर्म में मानती है. चारवाक ऋषि हुए, वो ये बोलते हैं कि मैं किसी को भी नहीं मानता, आई एम एन अथीस्ट. वो मंदिर के सामने खड़े हो गए, ये बोलते थे कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है. फिर भी चारवाक को फांसी नहीं हुई कोपरनिकस और एरिस्टोटल और सोक्रेट्स की तरह. बिकॉज फ्रीडम ऑफ कंसाइज पहले भी था. एंड वी हैव टुक दिस आइडिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव टुक द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइज फ्रॉम आवर पास्ट, फ्रॉम भारत, नॉट फ्रॉम द वेस्ट. इमैनुअल कांट नाम का एक पर्सन हुए है, सुना होगा आपने. व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट? कोई बता सकता है मुझे? चलो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताता हूं. बेंथम भी पता होगा आप लोगों को. एक 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 छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से. आपको बेंथम और कांट पहले समझा दूं, देन ओनली आई कैन मूव फॉरवर्ड. सपोज एक ट्रैक है, उस ट्रैक के दो एंड है, और दोनों एंड में एक एंड पे 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक एंड पे 5 आदमी काम कर रहे हैं. आपके पास एक गाड़ी है, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया. ये फिक्स है कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में जाएगी वो लोग मरने वाले हैं. आप किस साइड में लेके जाओगे अपनी गाड़ी? जहां 2 लोग होंगे वहां पे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैक्सिमम लोग मरे. यू वांट टू प्रिजर्व द हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल. दैट इज द बेंथम. Maximum happiness to the maximum people. The second example, suppose, जिन्होंने 2 लोगों वाला आंसर दिया, मैं उन्हीं से वापस पूछ रहा हूं. सपोज आप एक डॉक्टर है, और एकदम से एक पर्सन आता, बोलता सर मेरा लीवर ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा. फिर एक और पर्सन आता है, वो बोलता है मेरा किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा. एक और आता है, वो बोलता है मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा. इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर मर सकते हैं अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ. आप परेशान हो, क्या करें? यू आर डॉक्टर. तब एकदम से एक पर्सन आता है, एकदम ठीक है, उसका हल्का से चोट लगी, और आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसकी किडनी यहां ट्रांसप्लांट कर दे, क्यों ना इसका हार्ट यहां ट्रांसप्लांट कर दें, क्यों ना इसका लीवर यहां ट्रांसप्लांट कर दे. कर सकते हैं ना? मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल. एक मरेगा 3 बचेंगे. कर सकते हैं क्या हम लोग? नो. व्हाई नॉट? बिकॉज टू गेट द बेटर एंड, इट डजंट रिक्वायर कि जरूरी नहीं कि आप हर बार अच्छा आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप कुछ भी यूज कर लें. मीन्स शुड बी ऑल्सो रैशनल वन. जो तरीका आप यूज कर रहे हो वो भी रैशनल होना चाहिए. दैट इज इमैनुअल कांट. बेंथम बोलते हैं कि एंड भला तो सब भला, कुछ भी मीन्स यूज करो. कांट बोलते हैं नहीं, द मीन्स शुड बी गिवन प्रेफरेंस. जो मीन्स है उसको प्रेफरेंस दो, एंड बाद में देखो. आप जो कर्म कर रहे हो उस पर फोकस करो, फल की तरफ मत देखो.
ऐसा कहीं और लिखा हुआ है क्या ये जो मैंने बोला हुआ? हाँ, इट वॉज रिटन, टाइमलाइन तो मुझे भी नहीं पता, बट 2-3-4 हजार साल पहले श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में ये चीज कही थी। 5,000 साल पहले युद्ध के मैदान में ये चीज कही थी, जो इमैनुअल कांट ने 3,000 साल बाद कही। और हम लोग इमैनुअल कांट जूरिस्प्रूडेंस में जब भी पढ़ते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि द मीन्स शुड बी बेटर एंड शुड नॉट बी गिवन प्रेफरेंस। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय इमैनुअल कांट, और बड़े गर्व के साथ बताते हैं। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रीड द बुक ऑफ जे साई दीपक, इंडिया दैट इज अ भारत, उसमें उन्होंने बताया कि इमैनुअल कांट वाज द पर्सन जिसने भारतीयों को, और आई थिंक साउथ अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन, उनको इडियट बोला है। उन्होंने बोला है कि दिस इज द इडियट रेस। भारतीयों के बारे में थोड़ा अच्छा बोला है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि दिस इज द इडियट रेस। और हम इमैनुअल कांट को एकदम बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ हमारे क्लासेस में ये डिस्कस करते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये आयरनी है। आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम को कनेक्ट करें, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा जूरिस्प्रूडेंस कनेक्ट हो हमारे पास से। दैट वी हैव टू डू। सिर्फ एक नाम भारत से अगर इतने सारे इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही है, और हमारे जो भी जूरिस्प्रूडेंस हमारे सामने अवेलेबल है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिसके थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। क्या हम लोग सोशल वेलफेयर स्टेट की जगह सोशल वेलफेयर नेशन की बात नहीं कर सकते? आई थिंक दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ अस, सोशल वेलफेयर नेशन। सोशल वेलफेयर स्टेट पढ़ा होगा आप लोगों ने? मुझे बताइए, दिस इज अगेन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, सोशल वेलफेयर स्टेट वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। क्या हम सोशल वेलफेयर नेशन की बात नहीं कर सकते? सोशल वेलफेयर स्टेट के साथ प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं। सोशल वेलफेयर स्टेट means it is the duty of the state to provide the facilities to protect the citizen of this country. ये है, ये ऑब्लिगेशन है सोशल वेलफेयर स्टेट पे। अब इसी ऑब्लिगेशन का बैड इंपैक्ट ये कि हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने स्टेट पे कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हुआ और आपका राजा हार गया तो आप भी हार गए। दैट इज द प्रॉब्लम विद द सोशल वेलफेयर स्टेट। इंडिया कभी भी सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं, इंडिया वाज एन सोशल वेलफेयर नेशन। What is the meaning of the nation? Nation made from the culture, from the people, not from the king or the head of the state. Social welfare nation बनता है लोगों से। हम लोग हमारे लिए सिस्टम इजाद करते थे, भारत अपने लिए अपना सिस्टम इजाद करता था। आप लोगों ने देखा होगा ना, वो प्याऊ का कॉन्सेप्ट होता है गांवों में, छोटे शहरों में, पानी के लिए तालाब हमारे लोग खुद ही करते थे, स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं थे। हम लोगों ने अपने पॉन्ड बनाए, बावड़ियां बनाई है, हम लोगों ने अपने घर बनाए। हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम वाज आल्सो रन बाय द पीपल ओनली, नेशन ओनली, नॉट बाय द स्टेट। स्टेट मींस गवर्नमेंट। हम लोग अपना सिस्टम खुद इजाद करते थे, इसीलिए हम लोग अपने राजा पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहे। इसीलिए 800 सालों तक इन्वेजन हुए, हमारे राजा हारे, लेकिन हमारी जनता ने अपना धर्म या रिलीजन या अपना सिस्टम नहीं बदला, बिकॉज वी वर नॉट डिपेंडेड अपॉन आवर स्टेट और आवर गवर्नमेंट और आवर किंग, बिकॉज वी हैड अ सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर नेशन। वी डोंट हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर स्टेट। तो वी हैव टू थिंक कि सोशल वेलफेयर स्टेट चाहिए या सोशल वेलफेयर नेशन चाहिए, राष्ट्र। अच्छा, राष्ट्र का भी मीनिंग है, बड़ा अच्छा मीनिंग है। जैसा कि उन्होंने बताया, भा प्लस रथ, द पीपल हु आर कंटिन्यूसली इनग्रॉस इन द सर्चिंग ऑफ लाइट। राष्ट्र इज ऑल्सो संस्कृत वर्ड, रा प्लस त्र, सेम मीनिंग है उसका भी। त्र मीन्स प्रकाश, रा मत लगे रहना। हमारे ऋषि मुनियों ने वो अपने आप में साइंटिस्ट थे, उन्होंने कितनी एप्रोप्रिएट सिमेंटिक यूज किए। भारत राष्ट्र, भारत का भी वही मीनिंग है, राष्ट्र का भी वही मीनिंग है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारी चीजें। आई थिंक आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप सब लोगों पे है।
राहत इंदौरी साहब ने बोला था ना कि ये हमारा कांटा है, हमसे ही निकलेगा, ठीक है ना। सो इट इज ऑब्लिगेशन ऑन अस कि इंडियनाइजेशन ऑफ लॉ कैसे किया जाए, ये आप लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग युवा है, बिल्कुल कर सकते हो इसको, ठीक है। युवा का उल्टा होता है वायु, धीरे चले तो ठंड देता है, तेज चले तो तूफान है, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग समझिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। हमारे किताबों में क्या लिखा है, डोंट बिलीव इन दैट। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा यही बोलते थे, लुक एट द फंक्शनल अप्रोच ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, इट इज यस इट इज अ फेडरल, इट इज नॉट एन क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल भी बोलते रहते हैं ना हम लोग, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और हम लिख के भी आते हैं, हम प्रूव करते हैं कि यस इंडिया इज अ क्वासी फेडरल। आई एम टेलिंग यू द इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर है, जो मेकर्स है, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने हमेशा से ये बोला है, लुक एट द फंक्शनल अप्रोच ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेफिनेशन। वो अंबेडकर साहब डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है ना लिंकन साहब की, बाय द पीपल ऑफ द पीपल, जो भी है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्होंने डेमोक्रेसी की अपनी एक फंक्शनल डेफिनेशन बना रखी थी। उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी का मीनिंग ये है कि वो जगह जहां पर सोशल और इक्वल राइट्स बिना वायलेंस के, बिना खून की एक बूंद बहाए अगर मिल रही है, तो दैट इज अ डेमोक्रेसी, दैट इज द फंक्शनल। हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बिना खून की एक बूंद बिगाड़े। यस वी आर द रियल डेमोक्रेसी, क्योंकि रियल डेमोक्रेसी के लिए फंक्शनल डेफिनेशन चाहिए, जो अंबेडकर फंक्शनल डेफिनेशन की बात करते हैं। इसीलिए हमारा सिस्टम पूरा फंक्शनल है। उस फंक्शनल सिस्टम का जो ओरिजिन है वो भारत से है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने बड़े आराम से मुझे सुना, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. I guess the aim and the topic that sir had chosen, probing Bharatiyata, and from the lecture itself, we got enlightened with what actually Bharat means. And to add to that, we are law students, so we have the urge to ask question. Curiosity is in our spirit and souls. So without wasting much time, we'll start with the student interaction and the questions. So we have the questions. Sir, I'll moderate. No, you may sit and answer. I'll moderate the questions for you. So the first question is, we have a culture which lasts from 5,000 years, but we have chosen to develop and amend it as per the changing times. But nowadays, as India is known to be known to be united by ethnically diverse nations. So is there any way that we have developed our thinking? So what is the role of amendments and the amending the Vedic culture if it was there to last for? जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो इन्होंने बताया है, या जो हमारा पास्ट है या कल्चर है, उसको कैसे एडप्ट किया जाए थ्रू द लीगल सिस्टम। जरूरत नहीं है उसकी। वी हैव ऑलरेडी ऑप्टेड। सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आपको। we have a diversity, it is a natural concept, it is a Bharatiya concept totally. Diversity, it is natural, you cannot change it. अब इस जैसा कि इन्होंने ये बताया कि उसको लीगल सिस्टम में कैसे लेके आए, लीगल सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूशन वो लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मैं राजस्थान से हूं, मुझे दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा लगता है। मैं जब महाराष्ट्र में पहली बार आया, उससे पहले तक मुझे ये लगता था कि दाल बाटी चूरमा इज द बेस्ट मील ऑफ दिस वर्ल्ड। महाराष्ट्र के मेरे जो दोस्त हैं उनको ये लगता था कि वड़ा पाव से बेटर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द डाइवर्सिटी। अब इस डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है, इसका एक चैलेंज है। इसका चैलेंज ये है कि अगर जब तक हम दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक हम लोग ये समझते रहेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और उससे डिसइंटीग्रेशन होने का खतरा है। तो उस केस में क्या किया जाए? एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहां पर कंसेंसस बने, जहां पर आके हम एक दूसरे से बात करें। वी नीड अ प्लूरलिस्टिक इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटी इज द प्लूरलिस्टिक इंस्टीट्यूशन, जहां पर दो लोग आते हैं, बात करते हैं,
और तब मुझे पता चला यार 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 पूरन पोली भी उतना ही अच्छा है जितना दाल बाटी चूरमा था। उसको भी ये लगा कि यार दाल बाटी चूरमा नाम से बड़ा अजीब लग रहा था लेकिन खाने में तो बड़ा अच्छा है। सो वी हैव मेड अ कंसेंसस। जरूरी नहीं कि हर बार लेजिस्लेशन बनाया जाए, एक्सेसिव लेजिस्लेशन इज खतरनाक। ज्यादा कोडिफाइड करना सिस्टम को खतरनाक है। इसीलिए इंडिया ऑलवेज बिलीव इन अ फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्सेप्ट। भारत हमेशा फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है। हम कोड ऑफ कंडक्ट में बिलीव करते थे, नॉट द कोडिफिकेशन। हमने वेस्ट से कोडिफिकेशन का आइडिया ले लिया कि हर चीज को कोडिफाइड करो, उसका बैड इंपैक्ट आ रहा है आपके सामने। इंडिया इतनी डाइवर्स है कि सारी चीजों को कोडिफाइड नहीं किया जा सकता। कोडिफाइड करने लग गए तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। सो कुछ चीजों को कोडिफाइड ना किया जाए तो बेटर है। वो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स और ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जो प्लूरलिस्टिक इंस्टीट्यूट है वो इस चीज को ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है। यस, Thank you, sir. The next one is, to what extent is it valid to bring Bhartiyata in our constitution after 75 years of independence? Because since these 75 years after altering the constitutions, we have amendments to which the people are now at a sorted level. So, don't you think it will be a bit more difficult? USA कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1776 और मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको कि 1776 में दे हैव रिटन कि वी आर अ इक्वल सोसाइटी एंड वी आर गिविंग द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल। लेकिन उनको कितने साल लगे रियल सेंस में इक्वलिटी को लाने में? इन 1960 ओनली एपेर्थीड लॉज को खत्म किया गया। इवन ब्लैक्स वर गिवन द सेम इंपॉर्टेंस इन 1960 ओनली। 250 साल लगे। सो हम एटलीस्ट 75 ईयर में ये काम कर रहे तो बड़ी चीज है ना। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन लाता है, उसके बाद सोशल रिवोल्यूशन लाता है। हमारा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन चल रहा है और विद इन अ 75 ईयर अगर हम सोशल रिवोल्यूशन लेने की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं। पिछले 75 साल में हमने हमारी जनता को ये फील कराया कि व्हाट आर द पॉलिटिकल राइट्स यू हैव। आज हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। हम सबको एक साथ वोटिंग राइट्स है। ये पॉलिटिकल जो एस्पायरेशंस है वो हमारे भीतर आ चुकी है। उसके बाद जाके अब हम समझेंगे कि सोशल रिवोल्यूशन की जरूरत है। तो आई थिंक यूएसए ने जो काम 200 साल में किया वो अगर हम 75 साल के अंदर कर रहे हैं तो वी आर बेटर देन यूएसए। तो ये टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो चुका है, अब सोशल रिवोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है। Thank you, sir. So the next question is also a bit related to the social revolution that you talked about. As Indianization of law focuses on the wisdom of India, which it already possesses, but there are some ills too which are prevalent from the ancient time, like the caste system. So how can it be possible to admire the concept of Indianization of law, where India itself is a subject of these little various ills? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से एक छोटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कास्ट सिस्टम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रियली वी आर फॉलोइंग द कास्ट सिस्टम और ये कुछ और था। क्या ये भारत की देन थी क्या कास्ट सिस्टम, और डू वी हैव एनी अदर सिस्टम? देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वर्णा एंड कास्ट। आप लोग किसी ने लिख लिया और उसको तुरंत फॉलो मत कीजिए, बिकॉज वी ऑल आर अ बिलीवर, वी आर अ सीकर्स, वी आर नॉट अ बिलीवर। कुछ वेस्टर्न थिंकर्स ने इंडिया को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, इंडिया को आगे आगे ना बढ़े, इसके लिए उन्होंने एक चीज डाल दी, कास्ट कास्ट कास्ट। प्रियम्बल में एक वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एक वर्ड है। देखिए ये कुछ वर्ड्स ऐसे आपके यहाँ इम्पोज किए जाते हैं ताकि आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहे इन सारी चीज़ों में। मैं आपको बताता हूँ प्रियम्बल में, ठीक है, कोई गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेती है तो इट्स ओके, वी हैव टू फॉलो इट। प्रियम्बल में सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये जो 3 वर्ड है आई थिंक 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए 1970। नहीं जरूरत थी उनकी, बिकॉज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रियम्बल वी हैव वन वर्ड, फ्रेटर्निटी। What is the meaning of the word fraternity? Yes?
No, it is not a brotherhood or sisterhood. It is a bandhutva. It is a bonding amongst the citizens. Vasudev Kutumbakam. The actual meaning of brotherhood and sisterhood is a very dangerous word. उसके पास भी मत जाइएगा, वो जेंडर बायस वर्ड है. These are the western meaning of the word fraternity. Fraternity का जो मीनिंग है वो वसुदेव कुटुंब से लिया गया. That is a बंधुत्व. बंधुत्व मीन्स बॉन्डिंग. अगर आपकी बॉन्डिंग है तो आप रिलीजियस प्रॉब्लम्स को भी साइड में रखोगे. अगर आपके बीच में बॉन्डिंग है तो आप कास्ट वाली प्रॉब्लम को भी साइड में रखोगे. अगर आपके बीच में बॉन्डिंग है तो इंटीग्रिटी अपने आप हो जाएगी, सब लोग इक्वल रहेंगे. तो सेकुलरिज्म बताने की कहाँ जरूरत है कि यू आर अ सेकुलरिज्म, यू आर अ सोशलिस्ट और योर कंट्री इज इंटीग्रेट. कहीं बताने की जरूरत नहीं. दैट वाज नॉट देयर. इवन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि कास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्पोज किया गया वेस्टर्न थिंकर्स के थ्रू, इसलिए दे हैव यूज्ड द वर्ड फ्रैटर्निटी, नॉट द ब्रदरहुड और दिस वन सिस्टरहुड या इस तरह के वर्ड. तो आप पहले ये समझने की कोशिश करें. हाँ, मैं ये भी चीज जरूर मानता हूं कि जिस प्रोपोगेंडा के थ्रू ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में लाया गया वो प्रोपोगेंडा काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है. ठीक है, लोग डिसइंटीग्रेट हुए, बट बिलीव ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. फ्रैटर्निटी को समझिए, धीरे धीरे ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएगी. और उसको खत्म करने के लिए वी हैव ऑलरेडी आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. वो ऑलरेडी है हमारे पास. आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो तो करना सीखिए. धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म हो जाएगी. ठीक है, यस मैम. The next one is 3 things that the youth must assimilate in furtherance of a better understanding of our Indian heritage and a quest for knowing and understanding the history and Bharatiyata in true sense. Can you please repeat this question? So the 3 things that the youth must assimilate or imbibe in themselves in order to proliferate this ideology of Bharatiyata or to revive the lost essence of Bharatiyata that is there. ठीक है. क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि कौन सी 3 चीजें ऐसी करनी है जिससे कि हम लोग ये फील करें कि भारत एग्जिस्ट करता है और भारत को बड़े लेवल पे लेके जाया जाए. तो ये तो यूथ खुद तय करे. ठीक है, अगर यूथ ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इट मीन्स यूथ इज अ कंफ्यूज. अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है आप सारे लोग 18, 19 या 20 साल के तो होंगे. ठीक है, कम से कम. अगर आप इस उम्र में अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये सोच का एक सवाल है. ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमें ये तीन कौन सी. आप अगर ये 3 चीजें ये पूछ रहे हो तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग हमारे आसपास की जो चीजें हो रही है उसको या तो पढ़ नहीं रहे, ना समझ रहे, ना ढंग से समझना चाहते हैं. 17 साल की उम्र में आपकी उम्र में एक आज से लगभग 70-80 साल पहले एक यूथ था, उसने एक मैगजीन निकाली कीर्ति करके पंजाब में. विच वॉज एन रिवोल्यूशनरी मैगजीन जिसमें रिवोल्यूशन के तरीके बताए जाते थे. कीर्ति बुक. जब ब्रिटिशर्स थे उस समय 17 साल का लड़का लिख रहा है और वो 17 साल का लड़का 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता है. भगत सिंह. He has started a magazine in a 17 साल के थे तब अपनी मैगजीन स्टार्ट की थी कीर्ति नाम की. खुदीराम बोस 13 साल की उम्र में, उन्होंने 14 साल की उम्र में तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है. विवेकानंद 21 साल की उम्र में तय कर चुके थे कि मुझे 39 की उम्र तक ये सारा काम खत्म करके चले जाना है. आप उसी जगह से हो, आप कोई नई जगह से नहीं हो. आपके आसपास मिस इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा जाल फैला दिया गया है कि आप खुल के सोच ही नहीं पा रहे हो. इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इट इज बेटर टू से दैट वी आर भारतीय रेदर देन इंडिया. आई रिस्पेक्ट द वर्ड इंडिया बट इट इज बेटर टू से द भारतीय, क्योंकि जैसा जैसा आप ये फील करेंगे कि वी आर भारतीय, आपको पता चलेगा वी हैड एन हिस्ट्री ऑफ सीकिंग द ट्रूथ. ये आपके जहन में है, आपको ओवर पावर्ड कर दिया गया है. तो उस ओवर पावर्ड को हटाइए. सोशल मीडिया का थोड़ा कम यूज कीजिए, बुक्स पे कंसंट्रेट कीजिए. टेक्स्ट बुक्स जो है, जो ओरिजिनल लिटरेचर है. और आप पुणे शहर में रह रहे हो, पुणे शहर में रह के अगर आप ये सवाल खड़ा कर रहे हो तो फिर पूरा भारत क्या करेगा. जो पुणे में आज होता है भारत कल सोचता है. ठीक है ना. तो अगर पुणे अगर ये सोच रहा है, अगर पुणे ये सोच रहा है कि क्या करना है तो भारत की हालत क्या होगी.
जो महाराष्ट्र में होता है बाद में राष्ट्र में होता है, ठीक है ना। वी हैड, आपके आसपास इतने सोर्सेज है, हमारे फर्ग्यूसन की बेहतरीन लाइब्रेरी है, हमारे पास ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, हमारे पास गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में है। आपकी वो जो 3 क्वालिटीज है ना, वो उनकी लाइब्रेरीज की बुक्स में छिपी पड़ी है, जाके ढूंढिए। दिस इज द ओनली लिंक विच आई कैन गिव। थैंक यू। What's your opinion on UCC, and is this the perfect time to enact it? यूनिफॉर्म सिविल कोड। Uniform Civil Code. अच्छा, ये ठीक है। अब इवन आई एम कंफ्यूज ऑन दिस क्वेश्चन। मैं भी अभी इस पे, अब मेरी एक स्टडी चल रही है, क्योंकि अगर मैं ऐसे न्यूट्रल वे में सोचूं तो यूसीसी के साथ ऐसा बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यूसीसी अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। और स्पेशली एक पर्टिकुलर रिलीजन, हिंदुज्म से जितने लोग आते हैं, वो लोग इस पे ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए। पहले मुझे भी लगता था कि हाँ यूसीसी होना चाहिए कॉमन सिविल कोड पर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यूसीसी का मतलब होगा कि आपका सिस्टम भी रहेगा, आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी, वो भी आपको फॉलो करनी होगी। हम लोग तैयार है क्या इसके लिए? अगर आप ये कहते हो कि मुस्लिम हिंदू सिस्टम को फॉलो करे आफ्टर यूसीसी, या क्रिश्चियनिटी है वो हिंदूज के कुछ बेस्ट सिस्टम है, वो यूसीसी के बाद, यूसीसी का मतलब ये होगा ना, इट इज एन ब्लेंडेड थिंग, इट्स अमालगम। जो हिंदू का बेस्ट है वो लिया जाएगा, जो मुस्लिम का बेस्ट है वो लिया जाएगा, जो क्रिश्चियनिटी का बेस्ट है वो लिया जाएगा, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि मुस्लिम हिंदूज के सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार रहे, तो क्या हिंदू तैयार है मुस्लिम्स या क्रिश्चियनिटी के बेस्ट सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए? समझ में आ रहा है ना आपको पॉइंट? यूसीसी के साथ ये चीज होने वाली है, इसलिए आई एम कंफ्यूज। या तो हमारी सोसाइटी तैयार हो जाए, सोसाइटी मीन्स सारे रिलीजन तैयार हो जाए कि ठीक है हम हिंदुओं का सक्सेशन सिस्टम भी एडॉप्ट करने के लिए तैयार है यूसीसी में, और हिंदू भी तैयार हो कि हम मुस्लिम्स का जो इनहेरिटेंस या जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेस्ट सिस्टम है वो तैयार है उसको लेने के लिए। अगर आप तैयार हो, आप में ये मैच्योरिटी है, तो वी विल वेलकम यूसीसी, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लीजिए। दिस इज द माई टेक ऑन द यूसीसी। अभी कोई कंक्लूसिव मैं आंसर नहीं दे सकता, बट दिस इज द रियलिटी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यस। And the last one is, you explained about how the fundamental rights were already present in India before certain people claim that it's borrowed from USA. So similarly, can we draw parallels anywhere in the ancient history of Bharat for the directive principles of state policy? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए आप महाभारत देखी होगी, आपने पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। महाभारत में एक भीष्म पर्व आता है। भीष्म पर्व, भीष्म पर्व का मीनिंग, मतलब देयर आर सेपरेट चैप्टर्स इन महाभारत। भीष्म पर्व में भीष्म जब बाण सैया पे सोए हुए होते हैं, उस समय अर्जुन और युधिष्ठिर और जितने भी लोग हैं उनसे वो कुछ चीजें सुनने के लिए जाते हैं। जो तो उस समय भीष्म ने, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, हाउ किंग शुड बी वर्क, किंग को कैसे काम करना चाहिए, ये सारी चीजें बताइए। तो उसमें आप यू कैन ट्रेस आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इवन जो आज का हमारा डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, वो भी ये बोलता है कि किंग शुड बी अनबायस्ड, ही शुड बी अ फिलोसोफर। एरिस्टोटल ने बोला ना, किंग शुड बी अ फिलोसोफर, किंग शुड बी अ फिलोसोफर। ये एरिस्टोटल ने भी बोला है, चाणक्य ने भी यही बोला है, युधिष्ठिर ने भी यही बोला है। युधिष्ठिर जब यक्ष के पास जाते हैं, एक महाभारत में एक छोटा सा इंसिडेंट आता है कि चारों भाई घूम रहे होते, प्यास लगती है उनको एक जगह, और तब युधिष्ठिर छोटे भाइयों को बोलते हैं कि वहाँ कहीं पानी हो, जाके पानी लेके आओ। पानी लेने जब जाते हैं तो वहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक यक्ष राक्षस होता है। वो यक्ष राक्षस बोलता है ये पानी मेरा, मैं तभी दूंगा आपको जब आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। तो नकुल, सहदेव, भरत, अर्जुन, जितने भी लोग हैं, भीम, वो मना कर देते हैं, और वो थोड़े टाइम के लिए दे बिकम अनकॉन्शियसनेस। तब युधिष्ठिर जाते हैं, और युधिष्ठिर वहां जाके उनसे बोलते कि पानी दीजिए और मेरे भाइयों को जिंदा कीजिए। तब यक्ष बोलता है उन्हें कि मेरे सवालों का जवाब दो। सवाल क्या है?
पहला सवाल है कि इस विश्व में सबसे तेज गति किसकी है? तब अर्जुन बोलते हैं, तब युधिष्ठिर बोलते हैं मन की, अभी यहां कभी वहां। अगला सवाल है किम आश्चर्य, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सबको पता हम मरने वाले, लेकिन फिर भी हम यकीन नहीं कर पा रहे। ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तब यक्ष बोलता है, यस यू आर अ फिलोसोफर किंग, आप अपने राज्य में बहुत अच्छी नीतियां दे सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जिंदा करता हूं। भीष्म पर्व में ये चीज लिखी हुई है। चाणक्य भी यही बोलते हैं, द किंग मस्ट बी ए फिलोसोफर। हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि किंग मस्ट बी फिलोसोफर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 15-16 एडी में हॉबस, ये कौन कौन थे, रूसो वगैरह, इन्होंने दिया है। तो 2-3-4 हजार साल पहले ऑलरेडी इट वाज डिस्कस्ड। ढूंढना पड़ेगा। अगेन दिस इज द वेस्टर्न कॉलोनियल एम्पावरमेंट है इनके ऊपर। वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस। वेस्ट वर्ल्ड को मार्केट की तरह, बाजार की तरह देखता है, हम लोग वर्ल्ड को परिवार की तरह देखते हैं। ठीक है ना? तो वो बाजार की तरह देखते हैं, बाजार की तरह देखते हैं, इसीलिए बोलते हैं मैं इस इंस्टीट्यूशन, प्लीज डोंट माइंड, ये कॉमन चीज है, हाँ मैं इस इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट हूं। नहीं नहीं, आप इस इंस्टीट्यूशन के प्रोडक्ट नहीं हो, आप इस इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले, यू आर द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है? तो हम लोग ध्यान रखेंगे, वी आर नॉट अ प्रोडक्ट। धरोहर, हम लोग धरोहर है इस संस्थान की, इस इंस्टीट्यूशन। वी आर नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलते हैं यू आर गोइंग इनटू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मींस बाजार, बाजार मींस वेस्ट। जैसे आप लोग, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर द 5 ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है? आप लोगों को पहले 2 साल थोड़ा थोड़ा लॉ पढ़ाया जाता है, थोड़ा थोड़ा लॉ। पहले ही साल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, पहले ही साल में पूरा आईपीसी नहीं होगा। ठीक है? आपको सोर्सेज बताए जाते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें पढ़िए, लीगल मैक्सिम पढ़िए। द सेम मेथोडोलॉजी शुड बी अप्लाइड ओवर हियर। आप लोग, मैं सच बता रहा हूं, महाभारत उठाओगे, गीता उठाओगे, या और भी कोई वैदिक लिटरेचर अगर आप पहली बार में उठाओगे तो आप जिंदगी में फिर कभी नहीं उठा पाओगे। दिस इज द रियलिटी, बिकॉज दे ऑल आर रिटन इन अ प्राकृत और द संस्कृत लैंग्वेज, विच इज अ वेरी टफ फॉर अस। मतलब हम सब के लिए टफ, मुझे भी नहीं आती समझ में। मैं ये सारे इंसिडेंट कहां से लेता हूं? जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स मीन्स कुछ अथॉरिटीज है, उन्होंने इस चीज को लिखा है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट का एक पब्लिकेशन है, धर्मशास्त्र, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ धर्मशास्त्र, रिटन बाय पीवी काने। पीवी काने, अब पीवी काने साहब ने जितने भी जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स थे, उसमें से उन्होंने कंटेंट लिया, उसको समझा, और उन्होंने बड़े ही आसान तरीके से 10 वॉल्यूम में पूरा लिख दिया। उसमें उन्होंने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शास्त्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट। सारी चीजें सिंपल वे में उन्होंने बता रखी है। अब उन्होंने मेहनत की है, तो आप क्यों कर रहे हो दोबारा मेहनत? ठीक है? एंड ही इज द अथॉरिटी, वो कोई सामान्य आदमी नहीं। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि हु ऑल आर द अथॉरिटी। जैसे साईं दीपक लिख रहे हैं तो ही इज अ अथॉरिटी, रामचंद्र गुहा अगर लिख रहे हैं तो वो भी अथॉरिटी अपने आप में, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है। तो ये पहले आप इन लोगों को फाइंड आउट कीजिए जिन्होंने बड़े सरल तरीके से ये चीजें रखी है हमारे सामने। तो वहां से जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर आपके अंदर एक थोड़ी सी एक आग उठेगी कि यार थोड़ा सा और देखना है। फिर धीरे धीरे आप बढ़िए। तो ये एक दिन में नहीं होगा। पहले दिन महाभारत बिल्कुल मत पढ़ना, मैं सच बता रहा हूँ, या गीता या फिर कोई भी संस्कृत वैदिक जो लिटरेचर है, पहले दिन मत पढ़िए। पहले दिन उन लोगों को ढूंढिए जो लोग इस पे थोड़ा बहुत लिखते हैं, थोड़े थोड़े इंस्टांसेस वगैरह जो लिखते रहते हैं। आपको ये सारी चीजें, बहुत अलग अलग पब्लिकेशन ऐसे बहुत सारे हैं जो इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा रिसर्च कीजिए। कुछ यूट्यूब पे भी कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स है, वहां से लिंक ढूंढने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद फिर बढ़िए। बड़े जो सोर्सेज है, मेजर सोर्सेज, जो प्राइमरी सोर्सेज, तो फर्स्ट वी हैव टू रिलाई ऑन द सेकेंडरी सोर्सेज, ऑथेंटिक सेकेंडरी सोर्सेज, देन प्राइमरी। ठीक है? Thank you so much, sir. Now I invite upon Smriti Dhoot to kindly deliver the vote of thanks for today's program. Thank you so much, Urja. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter the words, but to live by them.
It gives me an immense pleasure to present the vote of thanks. First and foremost, I would like to thank our speaker and esteemed guest for today, Assistant Professor Vikramaditya Singh Rathod, sir. Sir, it was really astonishing to listen to your perspective on probing Bharatiyata in Indian Constitution and jurisprudence. Thank you so much, sir, for covering from Vishnu Puran to Darwin's theory in beautiful words. It is also our honor to have Sri Vinod Kumar Pandey, sir, of Bharatiya Shikshan Mandal amongst us. This year, our CDC chairman, Advocate Ashok Palande, sir, who has been our backbone and our strength for our sport. We really are thankful for you, sir, and your consistent encouragement at every milestone. Our officiating principal, Dr. Priya Chopde ma'am, is our strong leadership's foundation and our success in every single endeavor. Ma'am, we are very grateful for all your efforts. Now, I would like to extend my gratitude words. Annaga Baldota ma'am, Director CLE, for being the torchbearer of today's program and all the new opportunities for benefit and betterment of students. I would like to thank the entire teaching and non-teaching staff for helping us in every single possible way. Last but not least, I would like to thank our audience for giving such positive response in this lecture series. I hereby declare today's program concluded. Thank you so much.